Hello everyone. In this project, we are going to perform Reliance Industries stock price prediction. So I have shared data set to all. You can see the data set here on the screen. Okay, and this data set comprises of various features, parameters, or variables, whatever you can say, which we will be discussing one by one. Okay. So first Sir, of good all, morning, sir. good morning, Sajid. Good morning. So first of all, as we are dealing with the problem related to the stock market, okay. So share trading, all these things. I hope you guys have some knowledge, and might be you are part of this thing also somewhere. Okay, because right now we are having online trading and all these various apps are also being available in which the people used to invest. Okay, though I don't have any idea because I never tried this thing. To be very frank, I tell you, never I tried this. What's happening, I have zero idea about it. But for a project thing, I am going to explain you what we are going to do here with stock price prediction. See, if we talk about the share price or a stock price, it is the amount, it is the amount that would cost to buy one share in a company. Okay, so company do give shares, and if you want a percentage of yours in that particular company, so you can buy their shares. Okay, and the share price is not fixed. Okay, it keeps on changing. Okay, the share price is not been fixed, it's keep on changing every time. Okay, so the point is, it may rise also, it may have a downfall also. So basically, the stock price is the current price. Stock price is the current price because we are going to perform the prediction over it. So stock price is the current price that a share of stock is trading for on the market. Okay, what is the current price? All right. So here I am available with the data set, and in the data set you can see that the first column is a date. Okay, on this particular date, what is the stock price? Okay, what is the price of the shares for Reliance Industries? So the column number one represents the date. We are having entry here from 19/8/2020, and it's going on day by day. We will check how many entries we are available with ahead. But to explain this initially, we are having the data set from where we are having entry from 19/8/2020. Okay, the next column is open. Okay, so what is the price at which the stock for a particular or share for a particular company, for example we are working with the Reliance, has been opened? Okay, so here are the opening prices. Okay, whenever the share market opened and they say this is the price for the, this is the price for particular share. Okay, for the Reliance industry, here they didn't mention. Okay, this is the opening. Now highest, okay, means throughout the day, what is the highest range of Sir, your voice is stock? breaking, sir. Okay, what is the highest range? Now my voice is okay. Now my No, sir. is it not okay right now also? No, sir. Is it been same for all, or am I No, sir, it is It's audible. clear for me, sir. it's It clear? is okay. Okay, Sajid, just Yes, please yes, check. sir. Just please check at your end. Sure, sure. So high is the price. That means throughout the day, what is the peak value achieved by a stock? Okay, so this has been mentioned in this column high. Next, low. Low means what is the lowest price achieved by the stock on that particular day.
So we are having the opening price for your stock. We are having the highest price achieved by your stock. We are having the lowest price achieved by your stock. And one more column we are available with, that is your close. Close means the closing price of your stock. So company do release their shares, their prices, and they put up a value of their share. If you want to invest in that, you can do. Okay. And you can purchase their shares and wait how much they are going to rise in a coming time. And this is how trading occurs. I hope if you guys are being a part of it, some of them, so whoever, they might know they have some investments related to it. Okay. And the prices are never been same. This is also the important thing in case of the trading, because they keep on rising and downfall, or whatever. It's been it's a just a dynamic in nature. After closing price, so we can see that the entry number one, if I do talk about the date 19/8/2020, the opening price is 2141. It went higher till 2154. That means 13 points it increased. Then the lowest was 2121. That means there is a downfall of some points at some stage. And the closing was 2131. That means it's quite clear that there is a dip of 10 points in the stock price of the Reliance Industry shares. Okay. Now there is one more thing, that is ADJ close. ADJ close, that is called as adjusted closing price. Okay. So this adjusted closing price, it amends a stock's closing price to reflect the stock's value after accounting for any corporate actions. What does this mean? See, while if we talk about the closing price, see, closing price refers to the cost of shares at the end of the day. What was the final price when your stock market closed? That is called as a closing price. And adjusted closing price considers the factors like dividends, stock splits, and new stock offerings. That is called as adjusted closing price. Adjusted closing price begins where the closing price ends. Okay. So at the end of the day, we will share your in closing price. After that, there will be adjustments in the closing prices, and whatever be the adjustment in the closing prices, they will be, or it will be referred to as adjusted stock price. So if we assume that the closing price of one share of any of the company, say it is $20, say it is $20 on any of the day. Today is okay, we are not we can't consider today's. So let us suppose on Monday the closing price of any company share, one share, is $20. After the closing, the company announces its dividend distribution of $1.50 per share, for example. Okay. Then the adjusted closing price of for the stock would be around $18.50. That means 20 minus 1.50. Okay. So you get a closing. Okay, closing can be of any of the downfall. Here also in case of Reliance, you've seen that you did started with 2141, and eventually it closed at 2131. That means there is a downfall of 10 points. But what happened after the closing? Company uh, released or issued a dividend that, it could be like anything, any of the margin a company can give for the that particular one share of it. Okay, so the adjusted closing price would be would be like the initial price of the stock minus the dividend which has been, or the distribution given by the company. Okay. So then the later on,
after adjustment of the closing price, then if you want to get this shares from that company, so you can get it, you can purchase this thing. Your next column is of the volume. Okay, so what does this volume means? If a stock is a high trading, if there is a high trading in the stock, it means we are having a buying pressure, and investor demands to push the stock to higher and higher and higher prices. If the price of the stock with high trading fails, it means more investors are selling their shares. Okay, so basically the volume means the number of shares traded in a stock. Kitna big gaye, how many shares, how much is the trading of the shares for that particular company. तो investors क्या कर रहे हैं, they are pushing the stock to higher prices, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा there should be the raise in the price. Okay, so they are pushing, there is a high trading in the stock market. So the volume basically means the number of shares traded in a stock, or the contracts traded in the futures or the options, whatever it can be. So basically volume indicates the market strength. If your market is rising, increasing, typically volume is strong and healthy. That means trading is more. Okay, purchasing is more, demand is more. Okay, when the prices fall on increasing volume, in case when the prices fall in increasing volume, the trend is gathering strength to the downside. That means there is a downfall, there is a loss, or whatever you can say. Okay, so when the prices fall on increasing volume, that means the people are just going to push their the stock to higher prices. However, the prices are not achieving that much rate in the market, so obviously there will be a downfall. So volume is basically the measure of the shares traded in the stock market. This is the data set we are available with. No further information. After looking to this data, we need to perform the prediction, time series analysis, and definitely it will come to our mind that how to proceed, what to be done. Here we are available with the date here, and opening price, closing price, what is the highest and the lowest prices. This is the adjustment given by the company over the after the closing of the stock, and here is the volume. Okay. हेलो सर। Yes. हाँ सर, वॉल्यूम मतलब कि जितना शेयर बिक गया, सेल सेल हो गया, हाँ, द राइट? नंबर ऑफ शेयर ट्रेडेड, यस, जिन या जितनों की एंड ट्रेडिंग हो गई। ओके ओके, एंड एडजस्टेड क्लोज जो है वो, और क्लोज का जो डिफरेंस है वो क्या डिविडेंड हाँ, डिविडेंड, काउंट किया या जाएगा? डिविडेंड डिविडेंड होगा। डिविडेंड इज समथिंग कि कंपनी ने क्लोज तो हो गया आपका, आफ्टर द क्लोजिंग ओके कंपनी गिवन सम मार्जिन। ठीक है, जिस पर वो हो गया क्लोज, वो ठीक है, उसके बाद कंपनी ने एक मार्जिन दिया आपको कि इतने पर अब हम मतलब तैयार हैं बेचने के लिए। ओके, तो डिविडेंड इज समथिंग अ फ्रैक्शन, जैसे मैंने आप आई डिड टोल्ड दैट इफ यू आर हैविंग प्राइस ऑफ अ शेयर, वन शेयर इज $20, उस दिन की क्लोजिंग के बाद जो भी कुछ प्राइस आया होगा, व्हाट विल बी द क्लोजिंग प्राइस, वॉट एवर इज, तो द कंपनी गेव दैट 1.50 का डिविडेंड द कंपनी गेव। तो अब आप, तो उसका एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज 18.50। दिस इज द ओके एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस, ये हो ओके जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, यस। ऑल राइट। So now the question is how to approach this kind of problem. The point is we are available with the date, and on every date, what is the activity occurred with the your stock prices related to the Reliance Industries. The details has been mentioned. We need to approach our problem with this data set only. Okay, and do the predictions for the stock prices related to the Reliance Industries. What could be the next predicted prices?
Okay, so how to get into this problem? Now there is again the point is, your data set comprises of all the numerical values, obviously, because these are all the prices, rates, or whatever. Okay, so this could be like your integer value, or this could be like floating points value whatsoever. We don't have any kind of value which has been object type. So here the kind of analysis which we require is to get that what could be the price, what could be the price on a particular day on, or we are going to calculate the future predictions, future prices. For that also we are going to have a time series analysis. What is this time series analysis? I will let you know when I'm going to do the code. Okay, so any doubt here in this data set? If not, let us proceed to the coding part. Any doubt, please let me know, else we are going to proceed for the coding part. Hello, Nirmal. This one doubt here. See, Yes, this adjusted close price is declared on the same day or it is same day, next day? same day, same day. Same day, but actually, I have some Actually experience. what happened is adjusted yeah, yes, say. So I have some experience on trading with. So I'm looking Okay, in the this one pattern. So okay. this close, whatever the last close run, that is only Huh. reflecting. I am not showing adjusted close. That is what Okay. I have the concern. Another concern is like every day they are declaring this one dividend and then they are Yeah, yeah, adjusting. every day. Yeah, yeah. After the closing only. After the closing, what was the price? As I did explain that. Okay, the adjusted closing price, it amends stock's closing, reflected that stock value after accounting for any of the corporate actions, whatever the actions taken by that particular company, and they do some analysis, whatever. Okay, we are, whether we are in a loss, whether we are in a profit or whatsoever. Okay, after all examining the complete history, doing the evaluation, doing the detailed analysis of the past performance, whatever they did, so they are going to release the adjustments closing price. Okay, this is what they do. It's basically the closing price is just at the end of the day, and adjusted closing price consider the factors like dividends, stock splits, and new stock offerings, whatever. Okay, so this they consider each and everything, and then they're going to release your adjusted closing price. Okay, so closing price is basically for every day there is a closing price. Okay, so as you asked whether on that particular day only I'm going to give the adjusted closing price, it may happen they don't give. For some another day after the closing they might give, but just by checking the trend, what is the closing till now, they do the analysis and then they are going to share you, okay, this is the adjusted closing price after that. Is that okay? Okay. So only the point here is the adjusted closing price begins where the closing price end, and the closing price end on that particular day. After that, we are going to have some adjustments. Now, any other doubt? So, Please let me. Nirmal, Yeah, 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 yeah. yes, So, yes. do you mean, for example, you said adjusted close is 2124. So, Huh. do you mean if somebody wants to buy a share, they are they get the price is 2124 Mm-hmm. to buy And if anyone want to buy a buy a share? share, I guess that will be a basis on the adjustment closings, whatever the adjustment the company gave, because they did analysis that okay, there was a downfall in the shares, so we are going to sell more out it, so that next time when we come up, when the stock market will reopen again, and we are looking for the profits, might be this could be the strategy. So what is the initial strategy a company do take? I'm not I'm not been that much having a knowledge what could be the initial strategy after that the closing, where they are having a loss, so what kind of dividend they are going to give, whether it has been more or less than the actual closing also. Okay, because here in the data set, this is the question you asked, sir. Here in the data set we are having 2131, this is the closing, and the adjustment you are giving as 2124. Okay, so okay, this is less than the closing also, few points less than the closing, 7 points less than the closing. So what strategy the company took for the next, when they are going to again the stock market going to open, and what will be the price? Okay, so here if I do check 2120, for the next day it opened with 2120, highest it went 2123, lowest it went 202888,
and it closed with 2097. Again, we see that there is not too much, not too much profit. The closing is again, and here they give 2090 for that. Okay. Yeah. So I mean to say, if someone wants to buy a share, Hmm. would it be 2124? Yeah, after the adjustment, obviously, if someone Right. wants to, that is why the company did an adjustment, no, on the basis of that. No, the adjustment will happen after the After closing. closing, So yeah, once after the the market closing, is closed, market so is closed. next day, Yeah, if next next day day. if you see the Yes. price is 2120, that will be your buying price. It's See, not will be 20. 2120 is next day opening price. Opening price. Okay. Okay. This is your opening price. They did give the adjustments on at the end of the day. They did the adjustments, and when your next day the stock market opens and they again put a opening price for it, they again give an opening price for that, for the stock or the share for that particular whatever the company give for the trading purpose. So they again give a opening price to it. Okay, so the point is, what to be done with the adj close? What should be done with the adj close? Why the company gave this dividend? That should be the question, no? What to do with this price then? Because if one the closing has been done, then why the company has done the adjustments, and later on, as you said that in the next day company has again given some quote, and now you need to purchase the share of that particular company at this particular price. Okay, so why the adjustment has been done? What could be the reason? Then the company should not have to done any adjustment. Whatever be the closing was there, that's it, that's final. We should not go with the adjustments. So for whom this adjustment did? Investors in the Investors. company. Good, good. Yes, yes, that is the question, and that is the perfect answer. Investor, ताकि उनको लॉस ज्यादा जो भी है उनको सफर ना करना पड़े, बस इसीलिए, ताकि मेरे इन्वेस्टर्स कहीं चले ना जाएं. सैयद, Yeah. ठीक है. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स. मतलब कल को ऐसा हो कि आपके इन्वेस्टर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द मनी? ओके, तो यदि हमें जैसे आप देखें अभी एनालिसिस से इट्स बिन टेलिंग यू कि यहाँ पर मेरा लॉस हो रहा है. यहाँ मैं आई डिड ओपन विद 2141, क्लोजिंग 2131 पे हो गई. ओके, सो दैट मीन्स देयर इज अ डाउनफॉल 10 पॉइंट्स कर गए, और यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई गया भी नहीं, प्राइस इतना हाई नहीं जा रहा है कहीं पर भी. ओके, तो क्या हो रहा है कि इन दस केस कि मेरे इन्वेस्टर्स कहीं छूट ना जाएं, तो उनके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो ये जब मेरा बंद हो गया, ट्रेडिंग खत्म हो गई, उसके बाद मैंने कुछ एडजस्टमेंट करा और बोला कि यार इतने से अब जो है अपन मैनेज करेंगे. ओके, फिर दूसरे दिन वापस से कुछ एक प्राइस से वापस आपका स्टॉक मार्केट खुल गया, एंड व्हेन योर स्टॉक मार्केट ओपन, आपने प्राइस कुछ रख दिया अपने उसका शेयर का, फिर से ट्रेडिंग हुई पूरा, वॉट एवर द थिंग हैपेंड, वो पूरा आपका प्रोसेस चला. तो यहाँ इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट इट इज बिन, दे डिड मेंशन कि एवरी डे दे आर हैविंग सम एडजस्टमेंट्स. ओके, एवरी डे दे आर डूइंग सम एडजस्टमेंट. ये एडजस्टमेंट किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए कर रखा है उन्होंने. ओके, तो जैसे आपने Okay. भी इफ यू डिड परचेज्ड, और आपने खरीदा है शेयर, और आप ऑब्वियसली एवरीवन हु डिड परचेज द शेयर वो वेट करते रहते हैं कब जाके हाई होगा. और यदि इस तरीके से चलता रहा, तो ज़्यादा ही डाउनफॉल चलता रहा, तो कोई बात नहीं, आप तो लॉस पे आ गए. आपने जितना भी वॉट एवर यू इन्वेस्टेड 5000 करा, तो 1000 2000 ही मिल रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है शेयर का. ओके, तो उन्होंने डिविडेंड अपना एक कर रखा है कि मैं इस तरीके से, इतना तो लॉस ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या करा, व्हाट दे डिड कि इतना था इनिशियली, उसमें से कुछ कम कर रहा हूँ मैं, और बाकी ज्यादा लॉस पर आपको जाने नहीं दूंगा. देयर शुड नॉट बी टू मच लॉस. ओके, इतना जितना आप फेस कर रहे हैं उतना नहीं देंगे, उतना लॉस नहीं होगा आपको एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द क्लोजिंग. ये कहने की बात हुई, तभी एडजस्टमेंट करें उन्होंने. इज दैट ओके? Yeah. Got it. Thank you. ऑल राइट. सो अगली बार मुझे भी इंक्लूड होना पड़ेगा ये ट्रेडिंग वगैरह. ओके, ना ओके, सो एनी अदर डाउट प्लीज लेट मी नो, then we'll go into proceed with the coding part. Because now the thing is we need to perform the analysis over this data set. All right, let me get to the coding part. Okay, so
Reliance stock price prediction, and we need to apply our machine learning techniques, deep learning techniques to perform the analysis. So, for that purpose, the first step is to include the libraries. I get started with including the basic libraries or the primary libraries of my machine. I would say for your machine learning or data science. So my libraries are NumPy if I need to perform the operations related to the linear algebra. Pandas, obviously, I need to convert this CSV file which I did show to you into a data frame. So I'm going to include pandas also. The next thing is if I need to perform some visualizations over the data, for that I'm going to include some another basic or the primary libraries of Python, that is the Seaborn and the Matplotlib. Matplotlib, basic data visualization library. Okay, you can create various graphs with the help of Matplotlib. Seaborn is inbuilt on the top of Matplotlib. It is having much more better visualizations than the Matplotlib. Some different functions are available in the Seaborn library, so we can use those functions and build the graphs. After including these libraries, an optional library I'm going to include here, that is the warnings, because in case when I execute the code and there would be some warning came, some pop-up message came related to the code, so I'm going to ignore them. It's not about the error, it's about just only warnings, any messages during the execution of the code, so I'm going to ignore them. So this is the only library. So the point is why I'm approaching my problem. What was my problem? I need to predict the stock price, and initially the kind of data available to me is the opening, closing, and high, low, adjustments, volume. This is what I'm available with. I don't know what to do ahead. अभी अभी आई डोंट नो मुझे कुछ क्या करना है, अभी मुझे समझ में नहीं आया इतना। मैं क्योंकि आई डू द प्रोजेक्ट पूरा बेसिक से ही करते हैं, तो जब अभी नहीं आया क्या कर सकता हूँ मैं, व्हाट शुड बी डन, तो अभी क्या करना, व्हेन यू वांट टू परफॉर्म सम टास्क, क्या इनिशियली इंक्लूड कर सकते हैं, कौन से लाइब्रेरी से, कुछ बेसिक एनालिसिस तो वी कैन डू फ्रॉम आवर एंड। तो वही बेसिक एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ, आगे स्ट्रेटजी बनती जाएगी। ओके बनाते रहेंगे अभी आगे स्ट्रेटजी, कुछ बेसिक एनालिसिस वी शुड डू इन द फर्स्ट। तो लाइब्रेरीज इंक्लूड करा, फिर डेटा जो है उसको मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे। ओके CSV फाइल, आई रीड माई डेटा रिलायंस CSV, जो मैंने इस नाम से उसको सेव करा था, रीड CSV फाइल pd.read_csv, तो उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया मैंने, इट्स नेम इज df। देन व्हाट आई डिड इज उसका मैंने फर्स्ट 5 रोज प्रिंट करा। ओके आई प्रिंटेड द फर्स्ट 5 रोज, देन द लास्ट 5 रोज टेल से, तो हेड से फर्स्ट 5 रोज आई डिड प्रिंटेड, टेल से मैंने उसका लास्ट 5 रोज आई डिड प्रिंटेड। ओके तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, द रीजन इज कि यार मैंने अपना डेटा, इट हैज बीन एक्सेस सक्सेसफुली और नॉट, तो इट इज समथिंग विच यू नीड टू डू। Okay, so I'm printing the first 5 rows, the last 5 rows, then I'm going to check what is the shape of my data set. Data set बड़ा नहीं है आपका। Okay, it is just having 250 rows and the 7 columns, ये है अभी। Okay, 250 and the 7 250 rows and the 7 columns data set है आपका, आपने shape से पता करा। What are the column names which are available in your data set? तो ये मुझे यहाँ से पता चला, date, open, high and वगैरह वगैरह, these are the column names which are available in your data set। ओके उसके बाद आपने चेक करा कहीं ऐसा तो नहीं है, डुप्लीकेट्स तो नहीं आ गए आपके डेटा में, कुछ फॉल्ट एंट्री तो नहीं हो गई है। ओके तो उसके लिए यू नीड टू गो विद डुप्लीकेटेड डॉट सम। ओके हाउएवर हम ये जानते हैं कि अलग अलग डेट का डेटा है, तो डुप्लीकेसी होना इट्स नॉट द पॉसिबल थिंग, वो नहीं होगी। तो बट स्टिल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी कोड को करने का, रिलेटेड टू द डेटा साइंस और मशीन लर्निंग। सो दिस इज हाउ आई डू। ओके तो डुप्लीकेटेड चेक करा, नल वैल्यूज को चेक करा, फिर उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आपके डेटा में नल वैल्यूज हैं, ओके विच आर एम्प्टी, तो I calculated the sum of null values which are available in your data set। Okay so Sir, yeah, did you already share the data set? no I haven't shared the data set with all. Okay. Okay. I let me explain everything. Okay after the project I will share every means all, so you can do practice. So let me explain the Okay. complete project. Okay. Okay. So here I'm checking whether are there any null values in the data set or not.
So I did found that there are null values in open, high, low, close. One null values are available in all of these columns. So what next I am going to do is just drop those rows which are having the null values in your data set, because ultimately I can't do anything with the null values. And here also there could be a strategy. See, you could have applied a strategy. Okay, you find that there is a null value in your data, and you can replace, you would have been replaced that particular null value with either mean or either mode or median, whatsoever could be the point. You can have a replacements, but the point is only that I am having one null values, only one null values are available. So it's been, what I understood from this particular data, there might be a row, there might be a row whose details are not been available for these particular values. तो क्या करना है कि यार क्यों ना उस एक रो को, अब उसका मीन और इतना कोई ज़रूरत है नहीं, उतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा तो होना नहीं। ओके, तो क्यों ना मैं उसको ख़त्म ही कर देता हूँ, उसको ड्रॉप ही कर देता हूँ। तो ऐसा सोचा मैंने कि एक ही के लिए आ रही हैं सारी वैल्यूज़, तो लेट्स द बेटर थिंग इज़ टू ड्रॉप, उसको ख़त्म करो। आफ्टर दैट मैंने इन्फॉर्मेशन चेक करी। आई डिड चेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ माई डेटा df.info। ओके, सो आई फाउंड दैट कि ये मेरा डेटा सेट है जिसके ये दीज ऑल द कॉलम्स अवेलेबल इन माय डेटा सेट। इतने नॉट नल कॉलम्स हैं सारे 249, क्योंकि 250 था, एंड आई डिड ड्रॉप्ड वन रो फ्रॉम माय डेटा सेट। तो 249 जो है ये अभी मेरे पास इनिशियली अवेलेबल है, और ये उनके डेटा टाइप्स है। तो पहला मेरा डेट का जो है डेटा टाइप ऑब्जेक्ट टाइप है। हाँ, मुझे तो वो डेट दिख रही थी। द पॉइंट इज, जब आप यहाँ देखें तो ये डेट दिख रहा है ना, डेट डेट का फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल डेटा टाइप जो है वो डेट है, ऑब्जेक्ट है। ओके, रिमेनिंग ऑल सबका फ्लोट है, चलेगा, ये सब न्यूमेरिक्स का है, इसका जो है ऑब्जेक्ट टाइप है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि एक काम मुझे अब नजर आ गया। क्या नजर आ गया मुझे काम? वो काम ये नजर आ गया, इफ आई एम अवेलेबल विद द डेट और दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, तो उसको मुझे पाइथन की डेट टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है। एक काम मुझे याद आ गया। ये स्ट्रेटजी मतलब ऐसे करके अपन ऐड ऑन करते चले जाएंगे। ओके, सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस डेट इनटू डेट टाइम फॉर्मेट, बिकॉज ऑब्जेक्ट से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी एनालिसिस आगे करोगे तो ऑब्जेक्ट तो फेल कर देगा आपको, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिस्क्राइब करा, मतलब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मैं निकालना दिखाना चाह रहा था। आई नीड टू शो सम स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू माय डेटा सेट। तो ओपनिंग जितने भी न्यूमेरिकल, वॉट एवर बी द न्यूमेरिकल वैल्यूज अवेलेबल इन योर डेटा सेट, सो उनका स्टैटिस्टिक्स पूरा यहाँ पर रिपोर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स काउंट कितना है, व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू कितनी है उन कॉलम में, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है उन कॉलम में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा 25, 50%, 75%। और क्वार्टाइल क्वांटाइल वाले फंडे हैं जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स के होते हैं, वही यहाँ पर यू हैव शोन। सो दिस इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन ऑफ योर डेटा। इन केस इफ योर डेटा सेट डजेंट कंप्राइजेस ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये df डॉट डिस्क्राइब मत करिएगा। ठीक है, तो वो यदि कोई ये करोगे ना तो वो कुछ भी गलत दिखाएगा, कोई सेंस नहीं है। ओनली इफ योर डेटा सेट इज अवेलेबल विद न्यूमेरिकल वैल्यू तभी जाके df डॉट डिस्क्राइब करिएगा, वरना डिस्क्राइब मत करिएगा, यहाँ पर रुक जाइएगा df डॉट इन्फो पे। ये करने के बाद फिर मैं एक और चीज होती है, दैट इज एनी यूनिक, मतलब मैं कोशिश करता हूँ ये बताने के लिए कि हाउ मच यूनिक वैल्यूज आर अवेलेबल इन योर डेटा सेट। तो क्या हुआ जब मैंने एन यूनिक करा, तो आई फाउंड दैट कि यह तो बहुत हाई वैल्यूज आर देयर। दैट मींस डेट इज हैविंग 249, ओपन 218, 233, ऐसे ऐसे करके यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये मुझे बात समझ में आ गई कि देयर आर नो कैटेगरिकल वैल्यूज अवेलेबल इन योर डेटा सेट, देयर आर नो कैटेगरी वैल्यूज, नहीं है। ठीक है, तो एन यूनिक से पता चल जाता है। यदि कैटेगरी आ जाती कहीं पर भी तो फिर मैं उसका काउंट प्लॉट बनाता, तो मेरा स्ट्रेटजी फिर आगे बन जाती। if there is some category values available in your data set, so I can draw the count plot related to it। तो count plot बनाता और फिर बाद में उसी का ही पाई प्लॉट बना देता, ये कर लेता मैं। लेकिन अभी है ही नहीं कैटेगरी, तो काउंट प्लॉट की कहानी खत्म। ओके, तो वो होगा नहीं। तो क्या हुआ, एन यूनिक तक आएगा। ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। टिल अब आप इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इतने तो फंडे आपको अपनाने, यहाँ तक तो करना ही है। उसके बाद क्या बनी थी स्ट्रेटजी कि यार वो डेट जो था दैट इज ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप, एंड आई नीड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर डेट, उसको मुझे डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है पाइथन के। करते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो क्या है,
फर्स्ट व्हाट आई डिड इज कॉलम को रीनेम करना शुरू करा मैंने. तो डेट को रीनेम, df डॉट रीनेम कॉलम, जो नेम कॉलम नेम इज डेट, आई कन्वर्टेड इनटू डेट, स्मॉल वाला, स्मॉल डेट. ओके, ओपन कैपिटल ओ था तो उसको स्मॉल ओ ओपन करा, कैपिटल हाई था उसको इस तरीके से आई डिड कन्वर्टेड देम इनटू द लोअर केस के अंदर मैंने उनको कन्वर्ट करा, रीनेम करा है. सो यू कैन रीनेम द कॉलम नेम्स बट बाय दिस ऑप्शंस. df डॉट रीनेम्स आप ही का टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. Okay, so I just converted them into your smaller case. Okay, lower case. Again print कर दिया मैंने the top 5 rows of my data. उनको I did printed this. तो ये बस ये you can check them out that now your column names has been changed. आफ्टर दैट क्या करा, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मुझे डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है अपनी द डेट विच हैज बीन मेंशन्ड, आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डेट टाइम फॉर्मेट. Okay, so here I'm converting it like pd dot to underscore date time. Okay, this is the method already available. You can use it directly and convert that into date time format. Okay, so ये जो डेट है डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी. कन्वर्ट होने के बाद ओके, सो इफ यू वांट मी कि सर एक एक स्टेप का यदि हम आउटपुट चेकआउट करें तो मुझे एक बार कोड को री एग्जीक्यूट करने दे. एक एक हम वन बाय स्टेप जाएंगे, एक एक स्टेप पर मैं आपको आउटपुट बताते चले जाऊंगा. ओके, सो दिस इज द सेकंड ब्लॉक टू रन. ओके, थर्ड, नेक्स्ट. Okay, so we are going to check out the output for each and every block. Okay, so here is the did change the names, and here is the after changing the name, here you have converted date time format for the date. And if you want to show df if you want to print the date here, whether it has been converted into date time format or not, so df date, and you can please check df date in a date time format. Here it is, df date. Okay, and if you want to check, sir, kindly do us show the information. So df dot info, that it has been, its data type has been changed or not. So here you can see date time 64. Okay, so previously it was like your object type, now it has been converted into date type format. Okay, that is in a nanoseconds. Okay, date time 64 nanoseconds. Now what will happen, I need to sort the values of my data by or with respect to date, because we are going to perform the time series analysis. So time series analysis will be done on the basis of date only. So I'll be sorting my values with respect to the date. So this is how I can do df dot sort underscore values by date in place equal to true. Okay, so if you want to see, sir, what happened, kindly show us. So df dot head, let me show you what happened by sorting the values into date. So here you can check it out. Df dot head, its value has been sorted. Okay, with respect to your date. Okay, now if I'm going to print what is your starting date, what is your ending date, and how much is your data, we are taking for how much days your data has been taken. So in order to print the starting date, this is what you need to put up df dot iloc, iloc 00, iloc 00 का मतलब what is this, ये होता है rows के लिए and this is for the columns. Okay, one is for rows and another is for the columns. Okay, तो I am going to pick the starting date. तो starting days, that means पहली वाली entry, the first entry. Okay, और first वाला column, तो first वाला column आपका किसका है, date का है. Okay, तभी I have written 00. तो ये आपकी पहली entry होगी, पहली रो और पहला कॉलम की एंट्री बताइए क्या है. ओके, सो हियर इज द एंट्री. ओके, हियर इज द एंट्री 20 28 19 और ये 000, ये क्योंकि यू हैव कन्वर्टेड इनटू डेट टाइम फॉर्मेट, तो पूरा नैनो सेकंड्स तक जाएगा पूरा डेट टाइम फॉर्मेट में. तो ये उसने बताया. एंडिंग डेट यदि आपको निकालना है तो यहाँ आप चाहते तो 249 या 249 लिख सकते थे यहाँ पर.
ओके, क्योंकि योर एंट्रीज आर फ्रॉम 249 तक है, तो आई गेस 248 लिखना था आपको, लेकिन बजाय इसके आई शुड हैव बीन रिटन -1। -1 इसलिए लिख गया क्योंकि वो पीछे से एक्सेस अब जो है आपकी एंट्री जो है पीछे से एक्सेस करेगा। ओके, तो -1 इसलिए मेंशन करा। इफ आई कुड हैव रिटन 248 ऑल्सो तो भी वो आपको यही रिजल्ट दे देता। ओके, सो 249 पूरी एंट्री है, 0 से 248 वी नीड टू वर्क अपॉन, तो -1 आई हैव मेंशन, तो -1 इज योर लास्ट एंट्री। तो एंडिंग डेट क्या है, ये आपकी एंडिंग डेट है। अब आपको ड्यूरेशन निकालना है कि कितने डेज का आपका डेटा सेट है ओवरऑल जो दे रखा है। तो ड्यूरेशन आपका इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंडिंग डेट माइनस स्टार्टिंग डेट। तो ये आपका पूरा ड्यूरेशन हो गया। तो 364 डेज का आपके पास जो है अवेबिलिटी है। ओके, 364 डेज हैं यहाँ पर आपके पास, जो कि डेटा सेट के अंदर मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू द डेट्स। जिन जिन डेट का अपने पास डेटा सेट होगा वॉट एवर, तो उसके हिसाब से 364 इज द अवेबिलिटी। ओके, सो ये आपने अभी कैलकुलेट करा। आफ्टर दैट इफ आई नीड टू शो द मंथ वाइज, आई नीड टू शो द मंथ वाइज डेटा। ओके, तो अप्रोच अभी कहाँ से क्या बनी है। आप इनिशियली द पॉइंट वॉज कि डेट जो है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस है, तो डेट के ऊपर टारगेट करना है। तो डेट को टारगेट करा, वी डिड कन्वर्टेड इट्स टाइप। टाइप में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने उसमें इसकी स्टार्टिंग एंडिंग डेट निकाला। आई डिड कैलकुलेटेड कि यार वो ड्यूरेशन कितना था, ये आई डिड फॉर्म्ड। उसके बाद क्या करना है, व्हाट आई नीड्स टू डू इज मंथ वाइज कैलकुलेशंस करना। मंथ वाइज क्योंकि टाइम सीरीज का काम कर रहे हैं, डे वाइज भी है मंथ वाइज भी है, सारी चीजें हैं। तो to be very simple, let's work on the month wise kind of the data. Okay, तो month wise करना है, तो month wise is equal to df dot group by df date जो date वाला कॉलम है, dot dd dot strf time percentage b। what is this strf time? See, strf time जो है ये this is the function which is used to convert, basically this is a function which is used to convert date and time to स्ट्रिंग। बिकॉज ये पहले ही बोल रहा है ना, एस टी आर एफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। एस टी आर का मतलब होता है स्ट्रिंग, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट, तो टाइम, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम वो बोल रहा है अपना फंक्शन। सो इट टेक्स वन और मोर इनपुट ऑफ फॉर्मेटेड कोड, वन और मोर इनपुट फॉर योर फॉर्मेटेड कोड। तो फॉर्मेटिंग आपको करनी है, और मैंने यहाँ पर आई डिड मेंशन परसेंटेज बी। परसेंटेज बी का मतलब ये रहता है यू नीड टू टेक द मंथ। ओके, यू नीड टू टेक द मंथ, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वॉट एवर बी द नेम ऑफ द मंथ, यू नीड टू टेक द मंथ नेम, तभी यहाँ परसेंटेज बी है। देर आर वेरियस अदर पैरामीटर्स विच कैन बी गिवन इन टू एस टी आर एफ टाइम। आई एम जस्ट टेकिंग वन पैरामीटर दैट इज परसेंटेज बी बिकॉज आई नीड टू परफॉर्म द एनालिसिस बाय मंथ वाइज। ओके, ये लिया, तो मैं इसमें ओपन और क्लोज दो जो हैं टू कॉलम्स, ठीक है, टू कॉलम्स ओपन और क्लोज उनको लेकर चल रहा हूं, उनका मीन निकालूंगा। ओके, और उनकी वैल्यू सॉर्ट करूंगा बाय क्लोजिंग से, कि वो किस तरीके से क्लोज हुए हैं। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब है, द पॉइंट इज, लेट मी रन दिस कोड फर्स्ट, और आपको अगले पे आउटपुट दिखा के फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखिए क्या करा, ग्रुप बाय करा, किससे, डेट से। वेन एवर यू परफॉर्म अ ग्रुप बाय, तो ग्रुप बाय व्हेन यू डू, तो जिस भी कॉलम के रेस्पेक्ट में ग्रुप बाय करते हो वो इंडेक्स पोजीशन पर आ जाता है। ओके, दैट कम इनटू इंडेक्स पोजीशन। तो यहाँ जो इंडेक्स पोजीशन बन गई है वो डेट से बन गई है। ओके, अब डेट से बनने के बाद क्या हो गया है, आप यू नीड टू कंसिडर द मंथ्स। ओके, तो मंथ्स आपको कंसिडर करना है। सो मंथ्स विल बी फ्रॉम जनवरी, अप्रैल, नवंबर, मई और दिसंबर, वॉट एवर द मंथ विच इज बिन अवेलेबल इन योर डेटा सेट। जो भी मंथ्स थे वो मंथ को उन्होंने यहाँ पर क्या करा है, पिकअप कर लिया। वॉट एवर द मंथ अवेलेबल इन योर डेटा सेट वो उसने पिकअप कर दिया। फिर क्या करना था, दो कॉलम लेने थे आपको अपने डेटा से, ओपन और क्लोज, दीज टू कॉलम्स यू नीड टू टेक। ओके, एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज का मीन निकालना था कि वो ओपन इस पर्टिकुलर मंथ में जितने भी एंट्री से ओपन हुए, इन सबका मीन निकाल दो। ओके, जितने से भी वो हुए हैं, जितने भी एंट्रीज विच आर अवेलेबल इन योर मंथ, ओके, इन दैट पर्टिकुलर मंथ, कैलकुलेट द मीन ऑफ देम। ओके, तो उनका मीन निकाल दिया। मीन करने के बाद आपने क्या कर दी, सॉर्टिंग कर दी, यू डिड परफॉर्म द सॉर्टिंग। ओके, यू डिड परफॉर्म द सॉर्टिंग ऑफ द वैल्यूज। ओके, वैल्यू सॉर्ट करने के बाद क्या करा आपने,
ओके, वैल्यू सॉर्ट करने के बाद व्हाट यू डिड, सॉर्ट वैल्यूज बाय क्लोज, यानी क्लोज से वैल्यू सॉर्ट कर दिए। ओके, तो आप यू कैन सी दैट कि ये सॉर्टेड वैल्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द क्लोज। दीज आर द सॉर्टेड वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू द क्लोज। तो देखिए यहाँ 1957, 1961, 1964, 1972, 1978। ओके, तो आपने अभी एक मंथ वाइज एनालिसिस करा कि ओपन कितने से हुआ शेयर, क्लोज कितने से हुआ शेयर। ओके, और कौन कौन से मंथ्स का आप का डेटा आपके पास अवेलेबल था, तो हर एक मंथ का आपने बता दिया कि यार इतने, ऑन एन एवरेज, ऑन एन मीन इतनी ओपनिंग थी, इतनी क्लोजिंग थी, ऑन एन मीन, ऑन एन एवरेज। तो यहाँ से एक चीज पता चल रही है मुझे कि जनवरी, अप्रैल, नवंबर, ओके, यहाँ तक तो ओपनिंग क्लोजिंग का यदि मीन देखूं तो घाटे में चल रहे हैं, वी आर इन लॉस। मई के अंदर हम कह सकते हैं कि 1967 है, 1972 है, कुछ फायदा तो हो गया मई के अंदर, मतलब ऑन एवरेज लिया ओपनिंग क्लोजिंग का। ओके, और दिसंबर के अंदर फिर हम देखें तो वी आर इन अ लॉस, यहाँ 2 पॉइंट्स का लॉस है यहाँ पर। ओके, तो इस तरीके से आप मंथ वाइज कर सकते हैं एनालिसिस। उसके बाद क्या करना है, मंथ वाइज एनालिसिस आपने करा, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग, आपने ऑर्गेनाइज कर लिया ओपनिंग क्लोजिंग और ये सब बना लिया, उसके बाद क्या करना है, आई डिड इंक्लूडेड प्लॉटली, अनदर लाइब्रेरी फॉर द विजुअलाइजेशन। अब कारण ये है कि प्लॉटली, क्योंकि मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, उससे कर सकता हूँ, लेकिन हाईली इंटरेक्टिव ग्राफ इफ आई नीड टू प्रिपेयर, जिसमें आपको और बेटर विजुअलाइजेशन आए, तो प्लॉटली समथिंग लाइब्रेरी ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन विच इज अ हायर इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट अच्छा है। ओके, तो फ्रॉम प्लॉटली यू नीड टू इंस्टॉल प्लॉटली इन योर सिस्टम सेपरेटली, ये अलग से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन यूज प्लॉटली। तो यहाँ पर जो प्लॉट्स बनते हैं वो डैशबोर्ड की तरह बनते हैं प्लॉटली के अंदर। ओके, सो इन माय एवरी प्रोजेक्ट्स, इन प्रीवियस प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, मैं आजकल फोकस ज्यादा प्लॉटली पर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा विजुअलाइजेशन दिखा सकूँ। आप लोगों को भी अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर प्लॉटली करना है, क्योंकि मैटप्लॉटली सीबॉर्न से अब इतना ज्यादा आपको इंटरेक्टिव नहीं मिलता प्लॉट्स। सो import plotly डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट्स एज जियो, तो ये ग्राफ ऑब्जेक्ट्स को जियो बोलते हैं। तो ग्राफ ऑब्जेक्ट्स अल्टीमेटली वॉट एवर बी द ग्राफिकल फिगर्स अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर प्लॉटली लाइब्रेरी, वो सब उड़ जाएंगे, सब उठा लिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वॉट एवर, वो सबको मैंने इंपोर्ट कर लिया। और जैसे मैं मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पी एल टी लिखता था, उसी तरीके से प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एस पी एक्स लिखता हूँ। ओके, तो यदि मुझे प्लॉटली के फीचर्स को यूज करना रहेगा, ठीक है, यदि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आई नीड टू यूज, तो मैं गो का यूज करूंगा, जियो। यदि मुझे कोई फिगर ट्रेस करना है, इफ आई नीड टू ड्रॉ कंप्लीट फिगर, तो मैं जियो का यूज करके वो फिगर बना लूंगा। ओके, ये काम कर लेंगे। बाकी एक्सप्रेस पी एक्स से करना है। और इफ आई नीड टू प्रिपेयर द सब प्लॉट्स आपको बनाने हैं, इफ यू नीड टू ड्रॉ द सब प्लॉट्स मींस, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर रो में 2 प्लॉट दिखाने हैं आपको, तो सब प्लॉट होता है। ओके, सो प्लॉटली डॉट सब प्लॉट्स यू कैन इंपोर्ट द मेक अंडरस्कोर सब प्लॉट्स, ये आप कर सकते हैं, सब प्लॉट्स यू कैन शो। ओके, तो ये तीन बेसिक लाइब्रेरीज, दीज आर थ्री आर द बेसिक लाइब्रेरीज ऑफ द प्लॉटली। Okay, so this is what you need to include at your end when you need to get started with the plotly figure making. Okay, after that आपने क्या करा, fig equal to go dot figure, यानी जितने भी फिगर थे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट से प्लॉटली के अंदर, मैंने उनको कॉल कर लिया go dot figure से। तो फिगर एक्चुअली क्या, ये go क्या है, go is an object, go is an object, और इस क्लास ऑफ द ये जो आपका फिगर है, मेथड है, ठीक है। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो भी आपके ग्राफ्स थे, तो मैं क्या करूंगा, गो डॉट फिगर से उनको कॉल कर लिया मैंने इस तरीके से। देन फिग डॉट ऐड ट्रेस का मतलब यह है, आई नीड टू ट्रेस, आई नीड टू बिल्ड, आई नीड टू क्रिएट अ ग्राफ और प्लॉट। कौन सा बनाना है, गो डॉट बार। तो भाई मुझे बार, ये जो फिगर है, फिगर किसका बनना था, बार बनना था, बार ग्राफ मुझे प्लॉट करने हैं, तो गो डॉट बार। अच्छा, एक चीज है, इफ यू वांट टू हैव अ गुड हैंड्स ऑन प्लॉटली, तो इसके ऑलरेडी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं हर प्रोजेक्ट में बोलता हूँ, जो भी रहता है हर प्रोजेक्ट में बोलता हूँ, तो प्लॉटली की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वहां उन्होंने हर प्रकार के एवरी वॉट एवर द काइंड ऑफ ग्राफ्स विच यू कैन प्रिपेयर, दे डिड मेंशन्ड देयर। Okay, so you can practice plotly plots by checking the official website of plotly. This is what you can do. सब पता चल जाएगा वहां से, वेदर यू वांट टू ड्रॉ बार, पाई, हिस्टोग्राम, जो भी बनाना है ना, सब पता चल जाएगा वहां पर। ओके, सो गो डॉट बार। अब मंथ वाइज, मतलब ये जो ऊपर मैंने कैलकुलेट करा ना, ये अब मैं उसका प्लॉट बनाना शुरू कर रहा हूँ प्लॉटली की हेल्प से। अब देखो कैसे,
तो एक्स एक्सिस पर मैंने लिया मंथ वाइज डॉट इंडेक्स, तो इंडेक्स पे ये वैल्यूज हैं, जनवरी, अप्रैल, नवंबर, मई, दिसंबर, ये इंडेक्स पर ये वैल्यू है। तो मंथ वाइज डॉट इंडेक्स एक्स पर लिया। वाई मंथ वाइज ओपन, तो ओपन कितने पे हुआ, ओपन, ओपन की वैल्यूज हैं उनको वाई पे ले लिया, तो ये ओपन की वैल्यूज है ना, ये इनको वाई पे उठा लो। ओके, और क्लोजिंग की वैल्यू को भी अभी अपन उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहले नेम मैं कर लूं। नेम टू माय प्लॉट स्टॉक ओपन प्राइस, मार्कर कलर आपको जो देना कलर, आपकी इच्छा, जो जो वॉट एवर द कलर यू वांट टू गिव यू कैन गिव फ्रॉम योर साइड। मैं क्रिम्सन कलर दिया, whatever the color you want to give you can give from your side. This is here I've given the crimson color. If you want to change तो आप उसे change कर सकते हो. Let me first run this code. ओके ये रन हो गया। कलर यदि चेंज करना है तो आई कैन गिव लाइक पिंक कलर दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके पिंक कलर दे दिया। और द सेम थिंग, तो ये ओपन के लिए बना रहा था मैं। दिस प्लॉट इज बिन बिल्ड फॉर द ओपन। सेम सेम टू सेम प्लॉट जो है वो क्लोज के लिए भी बनेगा। ठीक है, यहाँ भी आपको कलर चेंज करना हो, आपको यदि कॉम्प्लिकेटेड नेम लग रहा है, पिंक है, पिंक का कॉम्बिनेशन किसके साथ रह सकता है, आई थिंक इफ आई डू राइट, जैसे ब्लू कर दिया। ओके लेट अस पुट अ ब्लू, ब्लू कलर का, तो रेड एंड ब्लू होना चाहिए फिर वो बेटर है। ओके रेड एंड ब्लू। ओके तो ये क्लोजिंग वाला है, ये ब्लू है। ओके नेक्स्ट क्या करना है, ये आपने एक फिगर ये ऐड करना है, एक फिगर ये ऐड करना है, यू नीड टू ऐड टू फिगर्स। ओके और कैसे ऐड करना है, अब देखिए लेआउट कैसा बनेगा, हाउ टू शो लेआउट क्या होगा। बार मोड मतलब बार मोड ग्रुप, मतलब आपको जो बार बनाना है ना, ये बार प्लॉट बनाना है आपको, यू नीड टू ड्रॉ द बार प्लॉट। तो ग्रुप 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 के अंदर बनाना है आपको, इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप के अंदर बनाने हैं। एक्स एक्सिस टिक एंगल, मतलब एक्स 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 टिक्स जो होते हैं, यानी वो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट मार्क करोगे ना वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। -45 डिग्री एंगल पे देना है, +45 पे देना है, 90 डिग्री पे देना है, जितने पे रोटेशन करके देना है दे दो, या 0 डिग्री पे देना है तो 0 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके वैसा दे दिया। टाइटल आप देना चाह रहे हैं मंथ वाइज कंपेरिजन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस, और खत्म, फिग डॉट शो, दिखा दो, शो द प्लॉट। ओके तो लेट अस सी, इसको मैं रन कर रहा हूं और अब हम देखते हैं कि क्या प्लॉट आया है। ये देखिए, हियर इज द प्लॉट, यू कैन सी। ओके तो जनवरी, अप्रैल, नवंबर, मई, दिसंबर, फरवरी, जुलाई, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, जून, सितंबर, ये पूरा जो है जैसा आपने सॉर्टिंग करी थी उस हिसाब से जो है सॉर्टिंग आपने करी थी, और सॉर्ट आपने जो डेटा कुछ इस तरीके से बनाया था। ओके किस तरीके से आपने डेटा बनाया था, क्लोजिंग के हिसाब से। ओके क्लोजिंग के हिसाब से करा था सॉर्ट। ओके तो क्लोजिंग क्लोजिंग को मैं किस कौन से कलर से शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ। ठीक है तो क्लोजिंग से सॉर्ट करा था ना, तो क्लोजिंग ये असेंडिंग ऑर्डर में बना है पूरा। और अब देखिए हाईली इंटरेक्टिव ग्राफ है। ठीक है बस मैं अपना कर्सर रख रहा हूँ ना, उसी पर ये बता रहा है सब। ये देखिए अलग अलग, जनवरी 1960, ये 1968 है, ये जनवरी 191957, 1957, ये हर एक का, हर एक आपके मंथ का, ये पूरा की पूरा आप बस कर्सर रखिए, ये बताते चल जाएगा। तो इट्स लाइक अ डैशबोर्ड फीलिंग। तो प्लॉटली से यही फायदा है। मैं चाहता तो एक ग्राफ सिंपल से भी बना सकता था, सी बॉन वगैरह लेकर भी बना सकता था, कोई इशू नहीं है मैटप्लॉटलिब का लेकर, लेकिन वहाँ मज़ा नहीं आता आपको। ठीक है तो प्लॉटली से बनाया है। ओके एंड दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। ओके तो आप इनको जूम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप जूम मतलब जैसा भी करना है आप इसको कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ओके तो ये आपका अभी जो एक बेसिक एनालिसिस करा, ओके ओपनिंग और क्लोजिंग का मंथ वाइज, ये मैंने यहाँ पर पुटअप करा। ओके नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट इज मिनिमम या लो, लो कब रहा, लोएस्ट वैल्यूज कब क्या रही है। ओके उसका यदि मुझे पता लगाना है तो क्या करा मैंने, df डॉट ग्रुप बाय डेट, df strf टाइम, अगेन मैं मंथ की तरफ जा रहा हूं, हर एक मंथ की तरफ जा रहा हूं, एवरी मंथ आई एम गोइंग टू टेक लो। अब लो कब रहा, लो मतलब उस मंथ में लो कब, कौन सी वैल्यू थी जो लोएस्ट थी स्टॉक की। तो मिनिमम, ये मेथड लगाया ना मिनिमम, ये बताएगा कि उस महीने में इन दैट पर्टिकुलर मंथ मिनिमम प्राइस क्या था स्टॉक का, व्हाट इज द मिनिमम प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक इन दैट पर्टिकुलर मंथ। तो ये आपको फंडे हैं सारे, ये लगाना है। डेट में मंथ में आ जाओ आप, तो पूरे मंथ में जो लोएस्ट था, ओके
लो वाला जो कॉलम है, ओके, उसका मिनिमम वैल्यू क्या है? यस ऋषभ, आस्क। सर ये परसेंट बी वाला। हाँ, परसेंटेज भी मंथ के लिए होता है ऋषभ, मंथ। ओके ओके। ठीक है, ऐसे एसटीआरएफ टाइम के अंदर कई पैरामीटर्स हैं। ओके, देयर आर वेरियस पैरामीटर्स इन एसटीआरएफ टाइम, बट परसेंटेज भी इज यूज्ड फॉर मंथ, क्योंकि मैं मंथ वाइज एनालिसिस कर रहा हूँ तभी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मिनिमम वैल्यू आई डिड प्रिंटेड, तो अप्रैल के अंदर मिनिमम ये था, अगस्त के अंदर 2041 था, दिसंबर के अंदर ये था, फरवरी के अंदर दिस इज द मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी प्रिंटेड द मिनिमम वैल्यूज। ओके, अब आप चाहें तो मैक्सिमम वैल्यूज भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करना हो तो एक काम करिए, अच्छा पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, लेट मी प्रिंट दिस थिंग, और इसी को उठाओ। ओके, जस्ट जस्ट टेक दिस थिंग, और सिर्फ मैक्स प्रिंट करना है तो कॉपी करके, ऑलरेडी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं आपके पाइथन के अंदर, तो मिन है और मैक्स कर दो। ठीक है, इसको यहाँ से उठा के मैक्स करिए और ये करिए कि क्या आया। तो मैक्सिमम वैल्यू अप्रैल के अंदर इतना था, अगस्त के अंदर इतना था, दिसंबर में इतना था। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो मिनिमम वैल्यू और अच्छा ये अब अच्छा एक चीज है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? या लो लेना चाहिए था, हाई लेना चाहिए था, क्या लेना चाहिए था? ये तो लो 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 वाले में मैक्सिमम वैल्यू क्या थी ये प्रिंट हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्या समझे आप? समझे ये क्या हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। ये जो Yes. लो वाला यस था ना, सर। लो, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो प्रिंट हुआ। ओके, अब मुझे यदि इसी को मैं उठा रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ इसको उठा के, अब यदि मुझे कहां पर जाना है, ये लो वाले नहीं, हाई वाले में मिनिमम वैल्यू क्या थी? ऐसा कर सकता हूं मैं, हाई वैल्यू में मिनिमम वैल्यू, कैन आई डू दिस थिंग? कि उस मंथ में हाई हाई जो शेयर्स थे, हाई 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 रेट हो रहे थे शेयर्स, उनमें से मिनिमम वैल्यू क्या थी उस समय पर? जो हाई वाला कॉलम है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या थी? वो ये है। कंफ्यूज मत करना, समझना मैं क्या व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो आपको ये लो और हाई के ना अलग अलग कॉलम है, एक कॉलम नहीं है, देयर आर टू कॉलम्स फॉर हाई एंड द लो। तो लो की मिनिमम वैल्यू क्या थी? ओके, वो प्रिंट कराए। फिर लो में ही मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वो प्रिंट करवाए। फिर हाई में ही मिनिमम वैल्यू क्या है वो प्रिंट करवाए। उसी को उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके हम यहाँ पर एक दूसरा कोड यहाँ पर बना लेंगे, मैक्स कर देंगे। तो इन हाईएस्ट ऑल्सो, हाई में ही आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वो भी प्रिंट कर देता हूँ, ये रही। तो हाई में मैक्सिमम वैल्यू ये प्रिंट कर दी। लेकिन अब यार मुझे एक कॉलम के लो हाई, मतलब लो और हाई कॉलम्स में मिन मैक्स ये तो मैंने सबके प्रिंट करवा दिया, आपको भी करना थे। मैं खास फोकस करूंगा कि हाई की मैक्स और लो का मिन के बीच का ग्राफ यदि मैं प्लॉट कर लूं तो मजा आ जाएगा। मतलब कितना आखिरी, मतलब कितना नीचे गया, डाउन कितना था, और हाई में हाई कितना पहुंच गया, इनके बारे में यदि अपन चर्चा करें तो ठीक है। इंटरमीडिएट के बारे में कोई मतलब नहीं है इतना। ओके, तो फिर मैंने क्या करा कि ये अलग अलग डिफाइन करे, मंथ वाइज हाई और मंथ वाइज लो, इस तरीके से लिया। और ये वही है ऊपर जो फंडे लगाए ना, बस हाई का मैक्स लिया है और लो का मिन लिया है, ये काम करा है मैंने। ठीक है, और इन्हीं से फिर सेम जो ऊपर ग्राफ ट्रेस करा था ना, वैसे ही ग्राफ ट्रेस कर रहा हूं मैं, सेम ग्राफ आई एम गोइंग टू ट्रेस। बस अंतर अब क्या रहा, ये बस कलर जो है वो चेंज कर दिए मैंने। RGB 0153 204, यहाँ पर कलर मार्कर क्या लिए थे, व्हाट द कलर मार्कर आई डिड टुक अबाउ। ओके, कलर मार्कर जैसे यहाँ ब्लू लिया था, तो कोई बात नहीं, अब तुम यार जो है कहीं परेशान ना हो तो कलर मार्कर भी फिर वही रखते हैं अपन, मत करो। RGB में उसने कुछ कलर डिफाइन करा था, मैं अगेन आई एम गोइंग टू टेक रेड और ब्लू ही ले लेता हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से अपना कोई भी कलर डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। रेड एंड ब्लू ले लिया। अच्छा, ये कोड वही है, एक्स एक्स ऑन एक्स एक्सिस मंथ वाइज हाई, वाई पर मंथ वाइज हाई की वैल्यू, और ये आप टाइटल दे सकते हो और कलर दे सकते हो। सिमिलरली यहां पर आप लो के लिए बना रहे हैं, ओके, मंथ वाइज लो इंडेक्स, मंथ वाइज लो जो वैल्यूज हैं उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ये टाइटल दे रहे हैं आप, नेम दे रहे हैं उसका, और ये मार्कर जो भी आपको कलर देना है, और लेआउट यहाँ पर बना रहे हैं।
बार मोड मतलब ग्रुप है, ग्रुप में बनानी है दोनों को, इन दोनों को ग्रुप्स में बनाना है। ओके, टाइटल, दिस इज व्हाट योर ओवरऑल टाइटल है, दिस इज ओवरऑल टाइटल। सो लेट मी रन दिस कोड। ओके, अब ये देखिए, तो हम ये देखें कि अप्रैल मंथ के अंदर हाईएस्ट इतना गया था और लोएस्ट इतना गया था। ठीक है, तो मंथ वाइज एनालिसिस चल रहा है। तो आपको यदि प्रॉब्लम दिया है स्टॉक मार्केट का कि एनालिसिस करिए, प्रिडिक्शन करिए, तो क्या क्या कर सकते हैं आप, ये अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट। अभी तो रिफाइंड था डेटा, तो आपको ऑलरेडी लो हाई ये मेंशन था, गिवन था, तो आप तो सीधा उठा के, इफ यू गॉट एन कमांड ओवर द पाइथन लाइब्रेरीज, तो आप इस तरीके से तुरंत क्विक एनालिसिस करके दे भी रहे हैं, करके दे रहे हैं। ये रहा, और बहुत सिंपल कोड्स करा है मैंने, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट कोई कोडिंग नहीं करी। ये जो बने हैं प्लॉट्स बड़े आसान है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन करी, कुछ नहीं करा और मैंने। और देखिए अब व्हाट काइंड ऑफ प्लॉट्स विच यू आर अवेलेबल विद। सो हियर you did plotted the maximum or the high and low stock price for that particular month। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इटर टूल्स, इंपोर्ट साइकिल। तो आप डेट से शुरू करा आपने, और डेट में आप अभी कर रहे हो, डेट में मतलब इस डेट में हाई कितना था, इस डेट में लो कितना था, इस मंथ में हाई कितना था, इस मंथ में लो कितना था। तो ये करके आपने भी कुछ प्लॉट्स करे। यू आर डूइंग ना ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, आप ये कर रहे हैं। अगली लाइब्रेरी, इटर टूल्स, इंपोर्ट साइकिल। अभी साइकिल ये साइकिल क्या होता है, इटरेशन। सी इटरेटर, व्हाट डज दिस इटरेटर, इटरेशन का मतलब होता है ना लूपिंग, वेरी वेल नो, लूप होता है वो। तो कई प्रकार के इटरेटर्स होते हैं, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इटरेटर्स व्हिच आर अवेलेबल इन पाइथन। ओके, एंड इटर टूल्स बेसिकली it contains some built-in function for generating sequences using iterators। Okay, using iterators, they iter tools can be used to generate sequences। Okay, so यहाँ पर we are going to use cycle, we need to perform some iterations। ओके, अब वो कैसे इटरेशंस बताएंगे आप, वी आर गोइंग टू यूज साइकिल। अब ये जो साइकिल है ना, दिस फंक्शन दिस फंक्शन साइकिल रिटर्न्स द इटरेटर ऑब्जेक्ट। ओके, अभी आप बोल रहे सर इटरेटर, इटरेटर क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, क्या होता है ये इटरेटर। सी इटरेटर्स सच एस लिस्ट, सेट, ये इटरेटर्स हैं। ओके, क्यों इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस पर, लूपिंग वगैरह लगा सकते हैं इन पर आराम से आप। Okay, and there are various types of iterator which are available in Python। For example, infinite iterators, short sequence iterators, combinatorics iterators, बहुत सारे iterators होते हैं Python के अंदर। ओके, तो अभी तो सीक्वेंस, जहां पर सीक्वेंस बन सकता है, तो ये जो आपका लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है, सेट होता है। ओके, बेसिकली क्या है कि ये इनमें आप कुछ जैसे लिस्ट, और मैंने आई डिड गिव एन एग्जांपल दैट लिस्ट और सेट। तो आप क्या कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ आइटम्स या कलेक्शन एलिमेंट्स लेते हो, उसमें फॉर लूप लगाकर आप इसमें कोई भी टास्क मतलब जो है मतलब एलिमेंट्स को प्रिंट करा सकते हो। वॉट एवर यू कैन डू, यू कैन परफॉर्म ओवर ऑल दिस स्टफ्स। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे इटरेशन, आई नीड टू परफॉर्म द इटरेशन। इटरेशन में भी एक मेथड ले रहा हूँ मैं, क्लास ली मैंने साइकिल, साइकिल ली। आई होप आपने इतना वर्कआउट नहीं करा इसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो साइकिल जो फंक्शन है, इसमें एक ही आर्गुमेंट अपन इनपुट करेंगे एंड इट विल रिटर्न द इटरेटर ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, तो अभी क्या करेगा, व्हाट इट इज गोइंग टू जनरेट, ये बेसिकली हियर इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को जनरेट करने के लिए मैं यहाँ इटर टूल्स में साइकिल्स ले रहा हूँ। ओके, हर एक एलिमेंट, it will perform the iteration through every element in the input and repeat the cycle and produces an infinite sequence of the argument। हर एक इनपुट पर ये हर एक इनपुट आर्ग्यूमेंट पर ये आपको कुछ आउटपुट देने वाला है, साइकिल रिपीट करेगा और इनफाइनाइट सीक्वेंस तक चलेगा। कैसे क्या है, लेट्स सी, कोड में बताऊंगा मैं। ओके, क्या करना, एक लिस्ट बनाना है मुझे, नेम से इक्वल टू साइकिल, नेम से इक्वल टू साइकिल, स्टॉक ओपन प्राइस, स्टॉक क्लोज प्राइस, स्टॉक हाई प्राइस एंड स्टॉक लो प्राइस। इस तरीके से मैंने क्या करा, एक आई नीड टू क्रिएट अ साइकिल, ओपनिंग क्लोजिंग हाई एंड लो, ऐसे बनाया। आई नीड टू ड्रॉ लाइन, बनाने हैं। ओके, पी एक्स डॉट लाइन डी एफ, ये मैंने आपका इनिशियल डेटा फ्रेम लिया।
x इक्वल टू डी एफ डॉट डेट, डेट के एक्स एक्सिस पर मैं लूंगा डेट, ओके, वाई एक्सिस में लूंगा ओपन, क्लोज, हाई और लो, इनकी वैल्यूज मैं वाई एक्सिस पर प्लॉट करूंगा। और लेबल क्या दे रहा हूं मैं, व्हाट लेबल आई एम गोइंग टू डिफाइन, लेबल दे रहा हूं डेट और स्टॉक वैल्यू, इस तरीके से आई एम गोइंग टू डिफाइन द लेबल। तो ये px डॉट लाइन का मतलब है कि आप प्लॉटली की मदद से लाइन प्लॉट कर रहे हो, यू आर जस्ट सिंपली ड्रॉइंग अ लाइन प्लॉट यूजिंग प्लॉटली, ये टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। अपडेट अंडरस्कोर लेआउट, ये ऊपर अभी यूज करा था, यानी कि मैं टाइटल का नाम देना चाह रहा हूँ स्टॉक एनालिसिस चार्ट। अब फॉन्ट साइज आपने जो लिखा है ना स्टॉक एनालिसिस चार्ट, उसका कुछ भी दे सकते हो, 15 दे सकते हो, कलर ब्लैक दे सकते हो, जो देना दे सकते हो आप, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ओके 20 10 जो भी फॉन्ट साइज देना हो, कलर जो देना हो वो दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिग डॉट फॉर ईच ट्रेस टी डॉट अपडेट नेम्स, ओके, जैसे जैसे वो अपना, जैसे तो एक ही बार के अंदर प्लॉटली का ये रूल है कि एक ही बार में वो तुम्हें पूरा प्लॉट बना के दे देगा। ओके, जो जो भी नाम आएंगे फॉर ईच ट्रेस, जो भी ट्रेसिंग मतलब आप यहाँ कर रहे हो, वट एवर द प्लॉट यू आर गोइंग टू ट्रेस, तो उसका जो भी नाम रहेगा वो आपका नाम यहाँ पर अपडेट कर देगा वो। एक्स एक्सिस शो करना है, नहीं करना है, अपडेट एक्स एक्सिस शो ग्रिड, ग्रिड लाइंस नहीं दिखानी, फॉल्स, एक्स एक्सिस पे भी नहीं दिखानी, वाई एक्सिस पे भी कोई ग्रिड लाइन नहीं दिखानी, और सिर्फ फिगर को शो करना है, जस्ट आपको प्लॉट शो करना है। तो यू नीड टू शो अ लाइन प्लॉट सिंपली। तो ये जो इतनी कहानी हुई है, ये पूरी, ये लाइन प्लॉट को दिखाने के लिए हुई है सिर्फ। ओके, और यहां मैंने बनाई है साइकिल। ओके, और साइकिल से भी होगा क्या, एक बार मैं इसको प्लॉट को शो करूं फिर देखते हैं। ओके, साइकिल कहीं ऊपर मैंने इसको इंक्लूड नहीं करा, ओके अब इंक्लूड कर लेता हूं, अब प्रिंट कराऊंगा। ओके, ये देखिए, हियर इट इज। तो स्टॉक पैरामीटर्स, ओपन स्टॉक, ओपन प्राइस, स्टॉक क्लोज प्राइस, स्टॉक हाई प्राइस, स्टॉक लो प्राइस, यही मैंने डिफाइन करे थे यहाँ पर। आई नीड टू प्रिपेयर अ साइकिल ऑफ इट। ओके, और साइकिल एक बार फिर से रिमाइंडर मारता हूं मैं, क्या कहना, इटर टूल से साइकिल क्या करता है, साइकिल ये मेथड क्या करता है, ये जो साइकिल मेथड है, इट इटरेट्स थ्रू ईच एलिमेंट इन द इनपुट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इनपुट आर्ग्यूमेंट हर एक के ऊपर इटरेट करेगा। cycle, there will be cycle, repeat the cycle and produces infinite sequence of the argument. Okay, अब यहाँ infinite sequence कैसे क्या बना, how infinite sequence has been created, आपने यहाँ लिया है जैसे अक्टूबर 20, जनवरी 21, अप्रैल 21, जुलाई 21, इस तरीके से यहाँ पर कुछ डेट्स यहाँ पर मेंशन करी गई है। यस हर्षवर्धन, यू कैन डिक्रीज द जूम। ओके, लेट मी डिक्रीज इट। आई गेस मैं इसलिए जूम कर रखा है ताकि आपको दिख सके अच्छे से प्रॉपरली। शुड हैव टू रिड्यूस द साइज, ये आप कह रहे हैं। ओके, सो हियर इट इज। ओके, तो चलो ठीक है, ये बाकी मंथ भी यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। ओके, ये देखिए, आई गेस अब यहाँ थोड़ा सा और बेटर आपको दिख रहा होगा, बस ना ये नाउ नाउ द प्लॉट इज क्लियर बट द फॉन्ट्स इज बीन रिड्यूस्ड। ओके, एनीवेज, तो क्या है, स्टॉक चार्ट एनालिसिस हमने क्रिएट करा है पूरा। ओके, तो साइकिल हमने क्रिएट करी बेसिकली, वी टुक अ साइकिल, ये चार एक लिस्ट बनाई थी मैंने, स्टॉक ओपन प्राइस और स्टॉक क्लोज प्राइस। तो साइकिल, अब साइकिल क्यों है, साइकिल किस लिए है, वाई, क्योंकि इटरेशन इटरेट कर रहे हैं हम, इटरेशन जब परफॉर्म हो रहा है, हर एक आर्ग्यूमेंट इसके लिए, ओपन प्राइस के लिए, क्लोज प्राइस के लिए, हाई प्राइस के लिए, लो प्राइस के लिए, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इटरेशन। ओके, तो इटरेशन भाई मंथ वाइज, जैसे सितंबर 20 लिखा है, नवंबर 20 लिखा है, जैन, मार्च, मई, जुलाई, तो सेम मतलब जो है पूरे एक मंथ का फिर मतलब जो है बार बार वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इटरेशन। ओके, तो ये जो आपका होता है इटरेशन परफॉर्म करा जाएगा, डेट्स जो है आपकी 1 से लेकर 30 तक जो भी चल रही हैं, हर एक मंथ के लिए, हर एक मंथ के लिए सेम, उन पर क्या क्या लो प्राइस था, हाई प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस क्या था, ओपनिंग प्राइस क्या था, पूरा इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग कलर से शो कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इफ आई डू रिड्यूस फर्दर द साइजेस तो आपको और शायद बेटर नजर आए, इससे ज्यादा तो नहीं। ओके, सो मी,
ओके, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हाउएवर ये जो है आपका, ओके नो दैट्स फाइन, ये ठीक है, अब यही ठीक है। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के अंदर ये जो पैरामीटर्स वी डिड मार्क्ड और एनालिसिस करा है अपन ने स्टॉक चार्ट का, ओके, फॉर ईच एंड एवरी मंथ। ओके, तो बस खास बात ये थी नेम्स, आपने ये नेम जो है यहाँ पुटअप करे हैं। नेम का यूज मैंने कहाँ करा है? फॉर ईच ट्रेस लैम्बडा टी, टी डॉट अपडेट नेम नेक्स्ट, यहां पर। बाकी व्हेन यू आर ड्रॉइंग द लाइन, वहां बना रहे थे वहां इसका कोई नहीं था, वहां उसका नहीं था। जब आपने ईच ट्रेस दैट मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू प्रिपेयर दीज लाइंस इन द प्लॉट, तो हर एक का नाम आपको देना पड़ेगा, यहां पर हर एक का नाम आपको देना पड़ेगा। ओके, इसीलिए यहाँ बहुत स्पेसिफिक, नॉट एवरी टाइम यूज्ड, बट दिस मेथड, दिस टेक्निक, दिस अप्रोच इज बिन मेंशन्ड फॉर यू ऑल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन के लिए। अब ये देखिए, आपको ये बेटर है, और स्टॉक्स में इस तरीके से एनालिसिस करके दिखाया जाता है। ओके, दैट्स व्हाई, क्योंकि टारगेट ही हमारा यही था, तो इसलिए ये यूज करा। ओके, और प्लॉटली ही कर सकता था ये काम, ये लाइब्रेरी। ओके, तो ये आपने यहाँ टाइम सीरीज एनालिसिस करा है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से, चार अलग अलग कलर हैं मेंशन कर रखे हैं। ओके, तो चार अलग कलर क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया नहीं था। ओके, तो ईच ट्रेस के अंदर अलग अलग कलर यहाँ से उसको मेंशन हो गए। ओके, एंड बस दैट्स इट। ग्रिड मैं चाहता यदि शो ग्रिड ट्रू करता। ओके, एक बार करके देख लेते हैं। ट्रू, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ग्रिड लाइंस ट्रू कर देता हूँ, ट्रू भी करते हैं, फिर से प्लॉट बनाते हैं। ओके, लेट मी रन दिस थिंग। अब ये देखिए, आपको पीछे ग्रिड लाइंस भी दिख रही है। ओके, ग्रिड लाइंस आपको ये पीछे दिख रही होगी। ओके, तो आप चाहें तो ग्रिड लाइंस भी शो कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इटरेशन परफॉर्म करा है क्योंकि टाइम सीरीज है ये, तो इसलिए मैंने इटर टूल्स का यूज करा, वहां से साइकिल उठाई है। ओके, और हर एक मंथ के लिए हमने लो, ओपन, क्लोज एंड हाई, इनका एनालिसिस करा। ओके, नाउ लेट मी इम्प्रूव द साइज अगेन, ताकि अब मैं कोड आपको दिखा सकूं, एल्स आपको बहुत छोटा कोड दिख रहा होगा, दिखेगा ही नहीं। लेट मी इम्प्रूव द साइज। Sir, what difference it would make if you do not use cycle function? यदि आप साइकिल फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, ओके, वेट अ मिनट, जस्ट वेट। जस्ट वेट। इज इट विजिबल? आपको दिख रहा है सभी को ठीक से? नाउ यू आर सेइंग कि सर साइकिल फंक्शन का हम यदि यूज नहीं करते हैं। ओके, तो अब मुझे यदि इसको नाम देना है फिग फॉर ईच ट्रेस। अब आपने ऊपर भी क्या करा था? आई नीड टू ट्रेस द फिगर्स, आई नीड टू ट्रेस द फिगर्स फॉर ईच, ठीक है। मतलब मुझे इसके लिए, किन के लिए? स्टॉक प्राइस के लिए भी फिगर बनाने हैं, स्टॉक क्लोज प्राइस के लिए भी फिगर बनाना है, स्टॉक हाई प्राइस के लिए भी फिगर बनाना है, स्टॉक लो प्राइस के लिए भी फिगर बनाना है, सबके लिए फिगर बनाना है। ओके, और फिगर एक ही बार में बनता है, प्लॉटली एक ही बार में आपको फिगर बना के देता है। आप ये कह रहे हैं सर मुझे साइकिल इफ आई डोंट गोइंग टू यूज द साइकिल, यदि मुझे साइकिल नहीं यूज करना है तो एक काम करिए, फिर इसी तरीके से बनाइए, ये जो ऊपर कोड है ना, इसी तरीके से करिए। तो फिग डॉट एड ट्रेस लाइन गो डॉट, मतलब अब लाइन लाइन एक पहले बनाइए, किसके लिए पहले बनाओगे लाइन? पहले बनाओ स्टॉक प्राइस के लिए, ठीक है। फिर मतलब ये जो दो मैंने ले रखे थे ना, गो बार, ये जो दो दो ले रखे थे ना, अब मैं क्या करूंगा इसी तरीके से, इफ आई नीड टू क्रिएट लाइन तो मुझे चार लेना पड़ेंगे, चार ऐसे मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ओके, एक एक करके बनाऊंगा। ओके, मैं फिर यह साइकिल नहीं लेता हूं, तो मैं फिर ये करूंगा फिर टास्क। ओके, ऐड ट्रेस, तो पहले आप जो है गो डॉट लाइन, एक्स में दे दो इंडेक्स, वाई में दे दो क्या, ये वाई में कौन सी वैल्यू दे दोगे? इसकी वैल्यू दोगे, डीएफ ओपन की, ये दो लाइन बनाइए।
फिर क्या करो, अगली बार फिर से वापस ये ले लो px डॉट लाइन, फिर df डॉट क्लोज के लिए बनाना, फिर हाई के लिए बनाना, फिर लो के लिए बनाना। अब यहाँ क्या हो गया, क्या चेंज करा मैंने, ये साइकिल इसलिए ली, एक ही बार में उठा के सबके ग्राफ इसी पे शो कर दिए यहाँ पर इस तरीके से। Okay, sir. ओके, ये चेंज करा है जो ऊपर नहीं करा था। ओके, तो ये चार्ट है, एनालिसिस चार्ट है। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर द फर्स्ट। ओके, यस, एनी डाउट प्लीज आस्क।